Namaskar, hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll be discussing about some important aspects related to gas-filled radiation detectors. You must have heard about ionization chambers, proportional counters, GM counters and the fill gases therein. Now before we proceed further in this video, I would like to ask you a question. What enables you to decide that a particular type of gas or gas mixtures should be preferred over the others in a given type of radiation detector? Well, the answer is as per experimental needs. In order to facilitate experimenter's choice, a given type of a gas or gas mixtures with low or high drift velocity of ions and low diffusion coefficient is preferred over the others. Now, I used two terms here, drift velocity and diffusion coefficient. Let us now try to build a relation between the two. So by now you should know that when an external electric field is applied to a region in which electrons and ions they exist in a gas, the net motion will comprise of superposition of random thermal motion along with a net drift in a given direction. So if you have watched my previous videos, you will recall that I had linked this random thermal motion to something called diffusion, and wherein I talked about this diffusion width. The expression is this, capital D is the electric field dependent diffusion coefficient, T is the total time elapsed. Okay, so coming to the expression for drift velocity, so drift velocity is this. I had talked about mobility in my previous video, and if I talk in terms of drift length, if Td is the drift time it takes to cover this drift length L, I can simply write this drift velocity to be this. Now putting this expression over here, you will easily find that this mobility is inversely proportional to this drift time. Now you know that in a gas there will be electrons, cations and anions. Their masses and sizes they vary. Now if I consider the size of the ions, larger the ion, more collisions, more probability to collide with the neutral gas molecules, larger the size of ions. So this will result in lower drift velocity. Lower drift velocity means longer drift time, and longer drift time simply means that the ion mobility will be lower. So larger the size of ion, lower the ion mobility. So talking about the radiation detectors, the typical detector gases with medium atomic number, in them the mobility of the ions is of this range. तो डिटेक्टर में गैसेस यूज होंगी, फिल गैसेस जो हैं उनका अगर मीडियम एटॉमिक नंबर है तो उसमें जो आयंस की मोबिलिटी होगी, द रेंज ऑफ मोबिलिटी इज दिस. यूनिट्स यू कैन फाइंड फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियो, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Go and check it out. Now coming to this expression, now if I have my fill gas at 1 atmospheric pressure, the typical electric field used in radiation detector is of this order, and the value for mobility I am taking to be this, the lower end वाली ले ली value, ठीक है. And if I need to calculate the drift velocity of ions, I'll be using this expression. तो मैंने क्या किया है, ये values यहाँ पे put कर दी, and I get my expression for the drift velocity of ions, which is this. Now for the typical detector dimensions, which are in centimeter, detector की dimensions, if I convert it into meters, it will be this. So the total transit time क्या है, the total time it takes for the charged species to move from their point of origin to their point of collection. ठीक है, तो total transit time of the ions क्या होगा, जो डिटेक्टर की dimensions हैं वो डिस्टेंस उसने कवर करना है डिवाइडेड बाय क्या होगा ये, तो आपका आंसर आएगा 10 मिलीसेकेंड्स. तो अगर आप कैटायंस की बात करते हैं तो उनका अपनी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कैथोड की तरफ जाने तक का जो टाइम लेंगे दैट इज इन मिलीसेकेंड्स. तो दिस बाय ऑल मीन्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम. कमिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, इनका साइज और मास बहुत कम है. तो आपको पता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन इसकी ज़्यादा है, लोअर मास ग्रेटर एक्सेलरेशन, ठीक है. तो मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, इट इज़ 1000 टाइम्स द मोबिलिटी ऑफ आयंस. 1000 टाइम्स जो आयन की मोबिलिटी हमने ली है, ये ली थी वैल्यू, इसका इंटू 1000 अगर आप करोगे, इस एक्सप्रेशन में दोबारा डालोगे तो आपने
क्या किया, जो टिपिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वही रखी और 1 एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर के लिए मोबिलिटी को जस्ट रिप्लेस कर दिया। तो ट्रांजिट टाइम क्या निकलेगा, अगेन यू विल बी यूजिंग डिटेक्टर डायमेंशंस इन सेंटीमीटर, तो वो 1 सेंटीमीटर अगर आप लेते हैं डिवाइडेड बाय दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि आपका ट्रांजिट टाइम निकलेगा एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10 माइक्रोसेकेंड्स। तो अब आप यहाँ देखो कि जो ट्रांजिट टाइम इलेक्ट्रॉन्स का है ये माइक्रोसेकेंड्स में है और आयंस का मिलीसेकेंड्स में है। माइक्रोसेकेंड्स 10 टू द पावर -6 सेकेंड्स होता है, मिलीसेकेंड्स 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स। तो मतलब टाइम क्या है, कम है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन ने अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, जिस पॉइंट पे ओरिजिनेट हुआ था वहाँ से लेके तक एनोड तक पहुँचने के लिए कम टाइम लगाया एज कंपेयर टू दैट ऑफ आयंस। फॉर एग्जाम्पल कटायंस जो आयन ने लिया टू रीच द कैथोड। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया, द ओरिजिन ऑफ डिफरेंसेस इन दिस ट्रांजिट टाइम is because of the differences in the mobility of electrons and ions. इसकी 1000 times है। How quickly electron moves through the gas, ये 1000 times better है आयन से, तो वो जल्दी पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जल्दी पहुंच जाते हैं और कटायन जो पॉजिटिव आयन्स है वो सुस्त से धीरे धीरे पहुंचते हैं, उनको टाइम ज़्यादा लगता है। किसी भी रेडिएशन डिटेक्टर में फिल गैसेस कैसी होती हैं, हाइड्रोकार्बन गैसेस जैसे कि मीथेन या गैस के मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल आर्गन का मीथेन के साथ मिक्सचर, ठीक है। तो अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो अगर मैं प्लॉट करूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन y एक्सिस और x एक्सिस पे मैं E/P रखूं तो मैं देखूंगी कि इन गैसेस में सैचुरेशन इफेक्ट होता है। सैचुरेशन इफेक्ट मतलब कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो एक पॉइंट पे मैक्सिमा आ जाएगा। दोनों ही केसेस में एक पॉइंट पे मैक्सिमा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद फर्दर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती हूँ तो या तो वैल्यू जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है वो कांस्टेंट ही रह जाएगी, एज फॉर द केस ऑफ मीथेन सैचुरेशन इफेक्ट आ जाएगा, मतलब फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, उतनी ही रह जाएगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ये उस पॉइंट के बियॉन्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकती है, एज इन द केस ऑफ आर्गन प्लस मीथेन। लेकिन अगर आप बाकी गैसेस देखें जो कि यूज़ होती हैं रेडिएशन डिटेक्टर्स में, उनमें कोई सैचुरेशन इफेक्ट नहीं है। कि मतलब अगर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ रेडिएशन डिटेक्टर्स में यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ तक अगर आप ये बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये दैट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। सो व्हाट डू वी कंक्लूड, द वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय गैस प्रेशर विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द गैस। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है जो कि मेरी एक्स एक्सिस है जो मैं मान रही हूँ, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो एंटी पैरेलल होगी इसके, और वाई डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन का नेट मोशन होगा दैट विल बी सुपरपोजिशन ऑफ थर्मल एंड ड्रिफ्ट मोशन, ठीक है। तो ड्रिफ्ट के साथ साथ रैंडम थर्मल मोशन भी हो रहा है। तो रैंडम मोशन है हर डायरेक्शन में होगा। अगर मैं डिफ्यूजन अलोंग एक्स डायरेक्शन देखूं, एक्स डायरेक्शन में मुझे चाहिए कि डिफ्यूजन कितना हुआ, तो दैट विल बी अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग डिफ्यूजन विड्थ दिस, जो सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की, जहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग हम डिफ्यूजन देख रहे हैं। तो जो वैल्यू आएगी इसको आपने सिग्मा एक्स लिख दिया, ठीक है। डी आपका है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ये भी आप मान के चलो कि ये फील्ड डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में फील्ड होने की वजह से जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू आएगी वो ये है। और जो टाइम है, टाइम आप यहाँ से देखो, जो ड्रिफ्ट टाइम है उसको हमने क्या कहा था, वो जो ड्रिफ्ट लेंथ होगी डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ चला वो अगर हमें एक्स ले लूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर डिवाइड करूँगी इससे तो ये ड्रिफ्ट टाइम मिल जाएगा। तो मैंने ये सिंपली ये पुट किया है यहाँ पे, डिफ्यूजन एक्स डायरेक्शन में देखने के लिए मैंने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब जो यूनिट्स हैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के वो क्या होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये जो सिग्मा है, जब आप गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी देखते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, ऐसा, ठीक है। तो ये जो सिग्मा है वो ये है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ जो है यूनिट्स
किस में होने चाहिए? सिग्मा के स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि एक्स एक्सिस के यूनिट्स हैं। सिग्मा ये है, तो ये अगर लेंथ के यूनिट्स हैं, ये अगर लेंथ के यूनिट्स हैं, तो अगर इसको आप ये यूनिट्स मानते हैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के, तो यहाँ पे टाइम है तो यहाँ सेकंड आ जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर वाले से कैंसिल होके ये अंडर रूट लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो आपको जो डायमेंशन है वो लेंथ की मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको बताती है कि इसके यूनिट्स ये क्यों हैं। अब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड विद मोस्ट प्रोबेबल speed because they are following Maxwellian distribution। तो in the absence of external forces, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं लगाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है they move around with most probable speed. This is according to Maxwellian energy distribution and the corresponding energy will be kT। हाफ mv स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, now you know that work is a form of energy। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो ये जो एनर्जी निकल के आई है ये वर्क डन की जगह अगर मैं रख दूं तो आई विल बी गेटिंग फोर्स इनटू दिस। तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रही है? फोर्स अप्लाइड बाय यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट है, अब मैंने आपको ये यूनिट्स बताए इसके डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के। नाउ इफ़ यू सी यहाँ पे अगर मुझे चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस चाहिए जो कि लेंथ में होंगी। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं इसको मैं किसी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड से डिवाइड कर दूँ तो मुझे जो डायमेंशंस मिलेंगी लेंथ की मिल जाएंगी। और मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कनेक्शन देखना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इसको इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको यूनिट्स जो मिलेंगे वो लेंथ के होंगे, डिस्प्लेसमेंट के होंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया? सिर्फ d की वैल्यू, जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की वैल्यू है, वो यहाँ से जो आएगी वैल्यू वो सिंपली इसमें पुट कर दी, एंड यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। तो इस एक्सप्रेशन को यू कॉल थर्मल लिमिट टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। तो यहाँ आपने ध्यान देना, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये पिक्चर में कब आती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ एडिशनल एनर्जी आएगी। यहाँ पे जो आपने इक्वालिटी लिखी है इसके ऊपर आपने क्या अप्रॉक्सीमेशन लगाई है कि आइडियल केस से बनाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर से लगाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो वो आपने यहाँ मिस किया है पॉइंट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जैसे डिफरेंट गैसेस की अगर आप बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कूल गैस कहते हैं। कूल गैसेस मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम ज़्यादा भी बढ़ाएं तो जो एनर्जी है वो थर्मल ही रहेगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये आइडियल केस जो है, ये जो थर्मल लिमिट टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, ये चल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें आर्गन की, आर्गन में अगर आप थोड़ी सी भी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लो भी है तो भी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाती है। आर्गन आपको पता है फिल गैस यूज़ होती है मोस्ट ऑफ द रेडिएशन डिटेक्टर्स में। तो ये जो आप इक्वालिटी यहाँ लेके बैठे हैं इसको तोड़ना पड़ेगा। तो दिक्कत कहाँ आ रही थी कि हम एवरेज एनर्जी इंक्रीज अकाउंट में नहीं ले रहे थे, इवन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम मान रहे थे कि जो एनर्जी है वो थर्मल ही है। ठीक है, कि इसके वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो अब हमने क्या किया? एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देना है। यहाँ पे जो फैक्टर है वो kT में मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट एक क्वांटिटी चाहिए विच रिप्रेजेंट्स एवरेज एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी और उसको भी अकाउंट में लेना है। वो क्यों लेना है? क्योंकि मैंने बताया कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज है वो काफ़ी वेरी करती है, वो काफ़ी वेरी करेगी। तो ये जो ईटा kT है, अब इसको कलेक्टिवली मैंने कोई एप्सिलॉन k कह दिया। वो क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक गैस डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा,
रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम मोबिलिटी को जनरली प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बनाते हैं, तो वो सारा एस्पेक्ट, जो प्रेशर का एस्पेक्ट हमने वहाँ से हटाया, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्लूड कर दिया और E/P को हमने रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया। और गैसेस की ही वजह से ये जो एवरेज एनर्जी इंक्रीज है वो वेरी कर रहा था डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के लिए। तो ये जो फैक्टर है, ये जो आया यहाँ पे एप्सिलॉन के, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक गैस डिपेंडेंट, तो हर एक टाइप ऑफ गैस के लिए ये वेरी करेगा। तो अब करना कुछ नहीं है, इस एक्सप्रेशन की जगह ईटा KT लोगे आप, इसको अब आप कह रहे हो एप्सिलॉन के, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी 2 एप्सिलॉन K, ठीक है। तो ये जो है ये अकाउंट में ले लेगा जो चीज़ आपकी यहाँ पे मिस करी, तो इसको आपने ये ले लिया और इसको पूरे को ले लिया ये, और सिंपली ये वैल्यू D की फिर यहाँ पे पुट करके आपको ये मिल जाएगा। अब आप कह रहे हो कि ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको इसको P से डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, और यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो आपको ये जो सिग्मा x है ये मिल जाएगा, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, एट अ गिवन वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ गैस प्रेशर। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो उस केस में क्या है, द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द एनर्जी, द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है, विल रिजल्ट इन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। एक मैं अगर D पैरेलल लिखूं कि जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और जो D परपेंडिकुलर है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ट्रांसवर्स टू द फील्ड, तो इसको मैं लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कह दूंगी, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड के। जनरली एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली देखा गया है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो D पैरेलल है वो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट काफ़ी कम होता है D परपेंडिकुलर से इन मैनी गैसेस। तो होता क्या है, जो एक्सप्रेशन होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफ्यूजन x एक्सिस में देखूं और y एक्सिस में देखूं, तो ये अगर जो टाइम है, ये जो टाइम ले रहे हैं टू रीच दी एनोड, जो इलेक्ट्रॉन टाइम ले रहा है, यहाँ पे जो आएगा वो D पैरेलल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी x एक्सिस में है, और सिग्मा y में D परपेंडिकुलर आ जाएगा। टाइम सेम रखूं दोनों में, तो हल्का सा जो सिग्मा x है वो सिग्मा y से कम होगा, विच मीन्स दैट कि जो डिफ्यूजन विड्थ है, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस है x और y एक्सिस में, x एक्सिस में जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसकी जो विड्थ होगी वो थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर टू द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इन y एक्सिस, और उसका जो सिग्मा y है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। कि अगर मैं टाइम फॉर एग्जांपल 10⁻⁶ सेकेंड्स लूँ फॉर 1 माइक्रोसेकेंड टाइम, कि जो ऑर्डर निकल के आता है सिग्मा का दोनों के लिए वो कुछ मिलीमीटर या लेस का होगा, कुछ मिलीमीटर या लेस, विच मीन्स दैट अगर ये 1 मिलीमीटर है, ये थोड़ा 1 मिलीमीटर से थोड़ा कम होगा। तो ये दो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो मैंने क्या पढ़ाया था, द पॉइंट लाइक कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्प्रेड अबाउट द ओरिजिनल पॉइंट इनटू अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा विच इज़ गिवन बाय दिस। तो ये टाइम के साथ ये बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं टाइम बोलूँ कि द टाइम दैट इलेक्ट्रॉन, वो किस ऑर्डर का होगा, माइक्रो सेकेंड्स का। मैंने बताया था ये ट्रांजिट टाइम 10 आया था, तो मैंने अगर माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लिया है तो जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो mm या उससे थोड़ी कम आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो दो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस है, एक x एक्सिस में बनेगी, एक y एक्सिस जो उसके परपेंडिकुलर है। तो ड्रिफ्ट के साथ साथ ये भी हो रहा है डिफ्यूजन क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैंने x और y में कैसे हो रहा है वो बताया आपको, ठीक है। तो जो सिग्मा x है उसकी और ये सिग्मा y की विड्थ भी वेरी कर रही है। कि मैंने अगर इस पॉइंट पे चाहा था, एनोड के एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन चाहा था, वो वैसा नहीं होगा। डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा कि x एक्सिस में भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है कि थोड़ी सी आपको वेरिएशन मिल रही है,
इधर भी और इस डायरेक्शन गए, अनसर्टेनिटी सी आ गई। अनसर्टेनिटी की मतलब मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती हूँ कि ये यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि यहीं पे कलेक्ट होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ड्रिफ्ट के साथ साथ डिफ्यूजन भी हो रहा है। तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ कनेक्ट? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ चार्ज स्प्रेडिंग, चार्ज स्प्रेड कर रहा है। पोजीशन सेंसिटिव डिटेक्टर्स जो कि डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट टाइम पे और द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द एनोड। तो अगर उसी में ही स्प्रेड आ रहा है, उसी में ही थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, स्प्रेड आ रहा है चार्ज का, तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट कैसे होगा? पोजीशन रेजोल्यूशन जो आप अटेन कर सकते हो उस तरह के डिटेक्टर्स में वो लिमिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट।